Good morning, students, and welcome back. Today we are going to start lesson number unit 2, that is 2.1 from a railway carriage. Faster than Ferris, it's a poem, okay? Faster than Ferris, faster than witches, bridges and houses, edges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and the cattle. All of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain. And ever again in the wink of an eye, painted station whistle by. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green for stringing the daisies. Sorry. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load, and here is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone forever. So here is the poem in which the poet describes that many scenes what he sees from the window of the railway carriage. मतलब ट्रेन में जो खिड़कियाँ वहाँ से बाहर झांकते तो आपको क्या दृश्य दिखाई देता है, that is explained in this poem. Faster than Ferris, faster than witches, bridges and houses, edges and ditches, and charging along all troops in a battle, all through the meadows and the horses and the cattle. These are the scenes whatever you see from the windows of the railway carriage. What it says that the train runs so fast that all that look like something like a fairies or witches, the bridges and horses and ditches, means the train is moving so fast that it looks like a magical creature, such as the sceneries look like a magical creatures like a fairies and the witches that keeps on moving so fastly from his eyesight. उसकी आंखों के ऐसे सामने से ऐसे ओझल हो जाते हैं सब चीज़ें कि वो उसको लगता है फेरिस और विचेस की तरह लग रहा है, जैसे कि वो आंखों के सामने से ओझल हो रहा है. And charging along like troops in a battle all through the meadows and horses and cattle. और जो वहाँ पे हॉर्सेस और कैटल जो भी है, गाय भैंस वगैरह जो भी है मेडोस में, मतलब वहाँ पे ग्रीनरी जो पार्ट वहाँ पे जो ग्रेजिंग कर रहे हैं, ऐसे लग रहे थे, ऐसे मूव टू द स्पीड ऑफ द ट्रेन. इट लुक्स एज इफ दे आर फ्लाइंग अवे जस्ट और मूविंग वेरी फास्टली लाइक द सोल्जर्स. जैसे एक इसमें बैटल फील्ड में जब जैसे एक सोल्जर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए किस तरह भागते वैसा नज़र आ रहे थे वो सब दृश्य. All the sides of the hills and the plain fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye, painted station whistle by. The whatever the sides, जैसे hill है, mountains है, plains है, it moves so fastly like a rain. मतलब एक बारिश वर्षा की तरह उसे महसूस हो रहे थे जो जल्दी से निकल जाती थी. जैसे एक ट्रेन स्टेशन के पास आता है, यू कैन जस्ट हियर द वॉइस ऑफ द विसल बट नथिंग हेल्स. यू कांट सी द थिंग्स वेरी प्रॉपरली बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन इज सो फास्ट कि हर चीज़ आंखों के सामने से पलक झपकते ही, विंक ऑफ अ हाई मतलब एक पलक झपकते ही वो आपके आंखों से ओझल हो जाती. ही वॉज जस्ट एबल टू हियर जस्ट ओनली द विसल ऑफ द while he comes to near to the station. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gather brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and there is a grain for stringing the daisies. In the third stanza, what he is saying, here is a child who clambers and scrambles. मतलब you can see a child who tried to climb up across some difficulty using the hands and feet. मतलब ऊंचाई पे चढ़ना चाहता है एक बच्चा, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा. इज टेकिंग द हेल्प ऑफ द हैंड्स ऑल्सो. जैसे छोटे बच्चे क्रॉलिंग करके चलने की कोशिश करते हैं, वैसे द चाइल्ड इज ऑल्सो ट्राइंग टू क्लाइंब अप द हिल्स एंड ऑल्स. स्क्रैम्बल मीन्स टू मूव और क्लाइंब क्विकली. ओके, तो बच्चा क्या ये कर रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है फास्ट तेजी से with the help of the hand and the leg also. All by himself and gathering brambles. Brambles is a wild bush with thorns. एक पेड़ होते हैं जिसमें बहुत सारी बुशेस, मतलब वी कैन झाड़ी हम कहते हैं,
जिसमें कांटे लगे होते हैं और उसमें ब्लैकबेरीज होते हैं। ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्राम्बल्स, मतलब वो क्या है, जाके वहाँ से ब्लैकबेरीज वगैरह कलेक्ट करने जाते हैं, जहाँ पे वो बहुत सारे बुशेस से बहुत सारे झाड़ियाँ होते हैं और उसमें कांटे लगे होते हैं। Here is a tramp who stands and gazes, and there is a green and string the daisies. Tramp मतलब एक पर्सन जिसके पास, Here is a tramp who stands and gazes मतलब एक वहाँ पे एक ऐसा इंसान जिसका अपना कोई घर नहीं होता है, उसके पास कोई पैसे नहीं होते। He collect the money from the others, स्पेंडिंग, जैसे हम भिखारी जैसे बोलते हैं, जो दूसरे से पैसे मांग के अपने गुजारा करते हैं। यही से वॉन्डरर वी कैन से, मतलब जिसका कोई घर बार ना हो, काम काज ना हो, उसको ऐसे भटकते हुए नजर आते। इस सच ए पर्सन ओवर देयर हु स्टैंड्स एंड गेजेस, मतलब उसके पास कोई काम नहीं, वो इज जस्ट स्टैंडिंग ओवर देयर, और गेजिंग करना मतलब देखना हो यहाँ वहाँ। एंड देयर इज अ ग्रीन एट द स्ट्रिंगिंग द डेजिस। Here is a cart run heavy in the road, lumping along with man and load, and here is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone forever. तो here is a cart run heavy in the road, lumping around. ओके, lumping मतलब जंप होता है, मूविंग विद द जर्क्स। रोड में रोड एकदम फ्लैट नहीं है, देयर आर सम हम्प्स एंड ओवर देयर, जैसे उबड़ खाबड़। तो व्हाट हैपेंड, द कार्ट इज जंपिंग, इट इज लंपिंग ओवर देयर, इसीलिए बोला गया है कि लंपिंग उबड़ खाबड़ रास्ता है जहाँ पे जब वो काट जाता है तो जंप कर रहा है, इट इज गिविंग अ जर्क ओवर देयर। एंड हियर इज अ मिल एंड देयर इज अ रिवर, ईच ए ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर। And what the poet is saying, here there is a mill, there is a river, all are there in a just in a glimpse, मतलब एक आंखों के सामने आ जाता है, and all passes away forever, फिर दोबारा हम उसे नहीं देख सकते, क्योंकि जो गाड़ी में हम जाते हैं तो जो दृश्य आंखों के सामने से दूर निकल जाता है वो उसको हम वापस नहीं देख सकते। दोबारा हमें फिर से वैसे ही ट्रैवलिंग करके आना पड़े कि फिर से वो दृश्य देखे। तो एक बार आपके आंखों से जो ओझल हो जाता है वो हमेशा के लिए छूट जाता है। सो दिस इज द पोएम फ्रॉम द रेलवे कैरेज, द सीन्स व्हाट द पोएट सीज फ्रॉम द विंडो ऑफ द रेलवे कैरेज, एंड ही एक्सप्लेन्स दैट वॉट एवर ही फील्स, वो जो देखते हैं उस खिड़की से बाहर जब झांकते हैं, दृश्य देखते हैं, तो उन्होंने उसको यहाँ पे पोएम में एक्सप्लेन किया है कि आंखों के सामने हर एक चीज़ आता है, बट इट जस्ट रन्स अवे इन अ मोमेंट, वी कैन जस्ट फाइंड ओनली देयर ग्लिम्सेस, एक छोटी सी झलक हम देख पाते और वो आंखों के सामने से ओझल हो जाते। तो वॉट एवर द सीन्स, वॉट एवर द थिंग्स he is mentioning in this poem, throughout his poem, in the first and all he sees the bridges, houses and edges and ditches. In the second, he sees the hills and plains and even the painted stations. In the third, he sees a child who is trying to climb up and collecting the brambles, that is the blackberries, which has lots of thorns in that plant. And in the third, in the last stanza, he sees a cart which is lumping along due to the road which is not in a straight manner, एक सीधा नहीं है, उसमें काफ़ी सारे उबड़ खाबड़ रास्ते होने की वजह से यू कैन सी ए कार्ट दैट इज मूविंग लंपिंग, यानी एक जंप करते हुए एक कार्ट को जाते हुए देखते। एंड इवन सीज द मिल्स एंड द रिवर्स, बट ऑल फॉर अ शॉर्ट ग्लिम्सेस, एक छोटी सी झलक उसकी दिखाई देती है, एंड इट इज गॉन फॉर एवर। सो दिस इज द थिंग, इट इज मेंशन इन दिस पोएम फ्रॉम अ रेलवे carriage. Okay, here are some of the assignment that you have to sort out and write yourself. कुछ आपको मैं मदद करूँगी लिखने में, आपको अंडरस्टैंड करने में, and others you have to do it by yourself. Bye, see you in the next lecture.